Good morning students, we are looking at NCERT page 178 example 2. If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. Right? So we have taken here two different triangles. Okay. So given में क्या आएगा? Given triangle ABC. Okay. Triangle ABC and triangle right angle triangle PQR जिसमें sin B is equal to sin Q, right? Sin B is equal to sin Q. So this is already given. Sin B is equal to sin Q, and what you have to prove is angle B is equal to angle Q. So this is a very important result that you are going to find out. Okay, in trigonometry this is a very important result, because by this theorem we are going to prove that if any of the trigonometric ratios are equal, that is sine of one angle is equal to sine of another angle, or cos of one angle is equal to cos of another angle, or tan of one angle is equal to tan of another angle, तो वो दोनों angles equal हैं. And this is because of this theorem. Okay, आप ऐसे sin B is equal to sin Q, sin कट जाएगा, ऐसे करके आप नहीं कर सकते हो. That is basically wrong, क्योंकि यहाँ sin और B का प्रोडक्ट नहीं है और या sin और Q का प्रोडक्ट नहीं है. What is this here? It is a ratio. It's a trigonometric ratio. Okay. So it is because of this theorem or the proof of this theorem that if we find any trigonometric, दोनों sides same trigonometric ratio होना चाहिए. Okay. So any trigonometric ratio should be equal. That means the angles are equal. So this is from this theorem. Okay. Now, so how are we going to prove this? First of all, let's mark the angles. Okay. So this is angle B and this is angle Q. We have to take the acute angles. So I took this B and this Q as per given in the question. So we will start with sin B equal to sin Q. Now sin B, angle B sin trigonometric ratio sin is given by so. So का टुआ शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था. So मतलब साइन ऑफ एन एंगल का क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. मतलब एंगल बी, यहाँ पर एंगल बी ले रहे हैं तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड हो गया AC एंड हाइपोटेनस उस ट्राइंगल का AB हो गया. ओके, विच इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल. ठीक है. सो दिस इज योर राइट एंगल हियर और यहाँ पर भी राइट एंगल हियर. सो द नेक्स्ट वन इज एंगल Q. एंगल Q, साइन ऑफ दैट एंगल Q मतलब साइन एंगल Q का ऑपोजिट साइड लेंगे जो कि PR है एंड हाइपोटेनस लेंगे जो कि PQ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट व्हाट इज गिवन. ओके, सो व्हाट इज गिवन प्रूफ करेंगे, लिखेंगे. सो क्या गिवन है? साइन B इज इक्वल टू साइन Q. दिस इज व्हाट इज गिवन. सो नाउ वी कैन राइट व्हाट इज साइन B. यहाँ पर इट इज AC अपॉन AB. AC आपका ऑपोजिट साइड हो गया, राइट, एंड AB हाइपोटेनस. सिमिलरली साइन Q का क्या है ऑपोजिट? PR, राइट, एंड उसका हाइपोटेनस हो गया PQ. नाउ सिंस यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है प्रूफ के समय? वी आर गोइंग टू कंपेयर टू डिफरेंट सेपरेट ट्राइंगल्स यहाँ पर. ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है PR. ठीक है, और AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है PQ. राइट. सो हियर ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ट्राई टू ब्रिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड PR एंड AB एंड PQ. सो इसलिए हम इसको लिखेंगे AC अपॉन PR, okay, is equal to AB upon PQ, and now we just suppose this as K. Okay, this is let. हमने assume कर दिया कि K है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? corresponding sides में एक relationship चाहिए. ठीक है, एक find करना है कि कितना है. ओके, सो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K. इससे दो चीजें मिल जाएंगे, AC
K times PR हो जाएगा. Okay, I'm writing that as 2 and AB आपका K times PQ हो जाएगा. Okay, that I am writing as my third equation. Okay, now what are the sides left? The sides left, if you look at the diagram again, the sides left are BC and QR. ये दोनों sides नहीं पता है हमको, तो इन दोनों का बीच का रेशियो फाइंड कर लेते हैं. लेकिन उसके पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बाकी दो साइड्स के रिलेशनशिप में ये कितना आ रहा है फाइंड करना है. राइट, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, पहले लेते हैं ABC. Okay, so we take that in triangle ABC. So we have AC square plus BC square is equal to AB square. Right? So BC का find करना है हमें. Right? So that is AB square minus AC square. Here we are trying to find BC. So BC कैसे मिलेगा? रूट ले लेंगे हम. So that is root of AB square minus AC square. Right? Now we got BC. So similarly, what will we get? We can get the the QR of the other side. So BC का जो corresponding side है वो है QR. वो भी इसी तरह मिल जाएगा. आपका hypotenuse यहाँ पर है PQ square, right, minus PR square. ओके, सो सेम थिंग, सेम रीति से आपको QR भी मिल जाएगा. अब इन दोनों का रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं कि कितना आएगा. ओके, सो लेट्स डू दैट. सो BC अपॉन QR कितना आएगा? यस, दैट इज रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. ओके, रूट टोटल, एंड ये आएगा रूट ऑफ PQ square minus PR square. Right? Now, हमने क्या find किया था? We found from 2 and 3, है ना? 2 and 3 से हमें क्या मिला? देखिएगा. You will get the same AB. I can write it as K times PQ. ठीक है, AB को लिख सकती हूँ, उसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस AC को लिख सकती हूँ K टाइम्स PR, इसका होल स्क्वायर. राइट, नाउ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. ओके, अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं. राइट, ब्रैकेट खोल लेते हैं. सो ये हो जाएगा K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर. ये पूरा अंडर रूट में आएगा एंड देन अपॉन में आएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. राइट, अब ये जो है रूट ऑफ K स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपको आएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. ओके, एंड देन द होल अपॉन अगेन रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. सो वेरी इजली रूट ऑफ K स्क्वायर हो जाएगा K, इसको हम बाहर निकालेंगे और बाकी सब जो बचता है वो एक्चुअली कट जाएगा. क्यों? क्योंकि ये रूट ऑफ P स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो गया. राइट, सो ये दोनों कट जाएंगे एंड यू विल गेट दिस ऑल्सो एज K. राइट, सो इक्वेशन 1 क्या था? Yes, let's look at that equation 1 where we saw the ratio of AC upon PR and AB upon PQ is equal to K, and अब ये भी मिल गया कि BC upon QR also is equal to K. Right, so let's write that down. Since AC upon PR is equal to AB upon PQ is equal to BC अपॉन QR. अब तीनों इक्वल टू हो गए K के, बराबर हो गए K के. तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. अब सिमिलैरिटी क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी उसका सिंबल देख लो, ये ऐसे बनता है. राइट, सो ABC इज सिमिलर टू PQR. मतलब इस पर्टिकुलर रूल में ये SSS सिमिलैरिटी रूल लगेगा.
सिमिलैरिटी रूल लगेगा. ओके, सो SSS सिमिलैरिटी रूल. ओके, सो जब according to this rule, if the corresponding sides of a triangle of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal. Okay, so that is the similarity rule, and here we have already proved. इससे हम यहाँ पर जो हमने इधर किया है वो इससे ये किया है कि हमने ये प्रूव किया है कि the corresponding sides of one triangle are proportional to the corresponding sides of the other. राइट, तो इस केस में आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और आप जानते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल हो जाएंगे. राइट.